Dear students, today we are going to start questions based on trigonometric identities. So before starting the question, now see the some important formulas first. First one, sin theta into cosec theta equals 1. Therefore, sin theta equal to 1 upon cosec theta and cosec theta equals 1 upon sin theta. Second formula, cos theta into sec theta equals 1. Therefore, cos theta equals 1 upon sec theta and sec theta equals 1 upon cos theta. Actually, these two formulae comes from cos theta into sec theta equal to 1. So, you can say cos theta equals 1 upon sec theta. Sec goes on right hand side, and for sec theta equals 1 upon cos theta. Here cos theta goes on right hand side. So, you can understand easily these formulae and transformation of these formulas. Now see third one, tan theta into cot theta equals 1. Tan theta into cot theta equals 1. Then tan theta is 1 upon cot theta. Okay, and cot theta is equal to 1 upon tan theta. Same type formula here, same format here. Here tan goes on the right hand side and here cot goes on the right hand side. So we get tan theta is 1 upon cot theta and cot theta equals 1 upon tan theta. Okay, now see the formula number 4. Tan theta equals sin theta upon cos theta and cot theta equals cos theta upon sin theta. अब इसके बाद आता है आइडेंटिटीज मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। Therefore, cos square theta, देखो cos square theta as it is put here, so we get cos square theta equals 1 minus sin square theta, taking sin square theta on the right hand side, and sin square theta equals 1 minus cos square theta। तो देखो वन आइडेंटिटी से टू मोर आइडेंटिटीज और निकाल सकते हो, या उसी का अनदर फॉर्म कि sin square theta plus cos square theta is 1, therefore cos square theta equals 1 minus sin square theta and sin square theta equals 1 minus cos square theta. Easily you can say. And formula number 7, 1 plus tan square theta equals sec square theta. So therefore tan square theta equals sec square theta minus 1, taking 1 on the right hand side, and for sec square theta minus tan square theta, if we take tan square theta on the right hand side, so we get sec square theta minus tan square theta equals 1. And see formula number 8, 1 plus cot square theta equals cosec square theta. Therefore cot square theta is cosec square theta minus 1, taking plus 1 on the right hand side, and taking cot square theta on the right hand side, then we get cosec square theta minus cot square theta equals 1. तो ये रहे हमारे थ्री आइडेंटिटीज, कौन से 6, 7 एंड 8। जैसा कि हमने अभी स्टार्टिंग में बताया कि टुडे वी वांट टू स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए तो मेन फार्मूले ये हैं 6, 7 एंड 8 एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन कौन से हैं, ये दोनों ट्रांसफॉर्म करके आते हैं, ये दोनों ट्रांसफॉर्म करके आते हैं, दोनों ट्रांसफॉर्म करके आते हैं। तो ये थ्री मेन आइडेंटिटीज हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, या सभी दूसरे फॉर्म में अगर बाहर रखना है, जैसे हमको अगर बाहर रखने का ट्रिक क्या है इनका वो देखो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ओके, तो अगर हमें सभी फार्मूले में राइट हैंड साइड में 1 वाला फार्मूला बाहर रखना है, कौन सा 1 वाला, जिसमें राइट हैंड साइड में 1 1 1 फिक्स कर दिए, बाकी लेफ्ट हैंड साइड का हमको देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। इसके बाद ये फॉर्मूला देखना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और जहाँ जरूरत पड़ेगी
तो ट्रांसफॉर्म करके मीन्स लेफ्ट राइट में ट्रांसफर करके ये दोनों फार्मूले बना सकते हो। और यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसको भी जब फिर वी टेक कॉट स्क्वायर थीटा ऑन द राइट, तो वी गेट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, मीन्स फर्स्ट वन आ जाएगा। और कॉट स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो 1 को लेफ्ट में ले लेते हैं और कॉट को राइट में कर देते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इसी तरह से हम तीनों फार्मूले में, तीनों आइडेंटिटीज में चेंजेस कर सकते हैं। तो बेस्ट तरीका, बेस्ट वे है बांट रखने का कि राइट हैंड साइड में तीनों में 1 लिखो, मीन्स इसका फर्स्ट और इसका ये थर्ड स्टेप और इसका भी थर्ड स्टेप, ये सभी आते हैं। जैसे भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले ये बाहर रखने के लिए यू हैव स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड या प्रीवियस स्टैंडर्ड जो भी रहा हो, तो उसमें क्या करते हैं, हमें जैसे साइड के फॉर्म में भी फार्मूले आते हैं। साइन थीटा, अभी उसमें एडजेसेंट, अपोजिट, हाइपोटेन्यूज या किसी किसी स्टूडेंट का परपेंडिकुलर फार्मूले में रहता है। तो ये सब जो परपेंडिकुलर और बेस के फॉर्म में भी दिया रहता है, तो उस फार्मूले में बाहर रख सकते हो, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री के लिए जैसा बीच में अगर टाइम मिलेगा तो हम उस फार्मूले को भी एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे भी साइन थीटा, तो साइन हम लोग, इसका फुल नेम क्या है, SINE, साइन। तो साइन, लेकिन हम लोग उसको राइट करते हैं सिर्फ 3 लेटर से, SIN, तो रीड एज साइन थीटा। और जो एक कोसेक देख रहे हो इसका फुल नेम है कोसेकांट, COSECANT। और फिर कॉस का भी फुल नाम है, ये साइन है तो ये है कोसाइन, क्या है, कोसाइन, COSINE, इसका फुल। कॉस का फुल नेम है COSINE, कोसाइन। और सेक, सेक का फुल नेम है सेकेंट, SECANT। और टैन का फुल नेम है, जहाँ भी है टैन का फुल नेम है टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट। और कॉट जो हम लोग यहाँ पर COT लिखते हैं, इसका फुल नेम है कोटेंजेंट, COTANGENT। तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन दिस चैप्टर। वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे जो हैं ये ट्रायंगल्स के साइड के रिलेशन बताते हैं। आगे चल के इन फार्मूले का बहुत ही ज़्यादा यूज है, बहुत हाई लेवल पर यूज है। जैसे जैसे आगे स्टैंडर्ड्स में बढ़ते जाओगे, 10th 11th 12th ऑनवर्ड्स, वैसे वैसे इनका यूज़ और इनके फार्मूले भी चेंज होते जाएंगे और आगे चल करके ये ट्रिग्नोमेट्री अपना एस्ट्रोनॉमी तक यूज़ की जाती है और सर्कल में भी यूज़ की जाती है, तो बहुत ही हायर लेवल तक यूज़ है। तो अभी ये जस्ट बेसिक फार्मूले हैं, लेकिन ये बेसिक फार्मूले हायर लेवल तक यूज होते हैं। तो मेन जो ओरिजिन है इनका, बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको बोला जाता है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे से बाहर हो जाना चाहिए। और उनको समझने के लिए उनका ट्रिक क्या है बाहर रखने के लिए, ये मैं किसी और दिन भी एक्सप्लेन कर दूंगा वापस। और अगर हमें सपोज कर लो ये रिलेशन हमें ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल से भी दिखाना है, तो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है वो ट्रिग्नोमेट्रिक एक ट्रायंगल से भी सेट करके दिखाया जा सकता है, देख सकते हो। और अगर ये आइडेंटिटीज का प्रूफ कैसे आते हैं फार्मूले, ये सभी फार्मूले पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ किए गए हैं। पाइथागोरस थ्योरम का जो रिलेशन है हमारा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो ये फार्मूले में जब हम लोग यहाँ पर साइन कॉस अपना यूज करेंगे इनके साइड्स के फॉर्म में, तो उसका प्रूफ भी वहाँ पर हो जाता है और उसी पाइथागोरस थ्योरम से सभी प्रूफ इजीली हो जाते हैं। और भी मेथड्स हैं जो हमारे अदर स्टैंडर्ड्स में हैं, अभी वो 10th स्टैंडर्ड या स्कूल लेवल में अलाउड नहीं है। ओके, तो ये रहे हमारे टोटल 8 फार्मूले, जिसमें से 6, 7 एंड 8 आइडेंटिटीज हैं और 1 से लेकर के 5 तक रिलेशन बिटवीन रेशियोज, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये बोल सकते हैं। तो और भी जो फार्मूला यहाँ पर लगेगा, जैसे एक्यूट एंगल फार्मूला फॉर 90 माइनस थीटा, वो मैं क्वेश्चन में बता दूंगा वहाँ पर। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। नाउ सी एक्सरसाइज 8.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन, express the trigonometric ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A। यहाँ पर क्या है, cot A, COT, जैसा आपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से, साइन ए, सेक ए एंड
tan a, इन तीनों को हमें cot a के फॉर्म में दिखाना है। तो इसका मीनिंग है कि sin a इक्वल टू जो राइट हैंड साइड में टर्म आएगा उसमें सिर्फ cot का ही टर्म होना चाहिए। ओके, sec a आएगा तो उसमें भी राइट हैंड sec a इक्वल टू समथिंग वो cot के फॉर्म में दिखना चाहिए, और tan a आएगा वहां भी cot a के फॉर्म में दिखना चाहिए। तो चलो ट्राई करते हैं। नाउ वी शुड स्टार्ट इट्स सोल्यूशन एंड राइट द रिलेशन। तो फॉर द सोल्यूशन फर्स्ट वन, पहले में दिखाते हैं कि साइन ए को हम कॉट ए के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखो, सिंस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई आइडेंटिटी, तो ये आइडेंटिटी देखने के लिए आइडेंटिटी नंबर 8 में जा सकते हो। वहां पर क्या लिखा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, मीन्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सॉरी, या राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, दोनों तरफ से बांट रहे तो बहुत ही अच्छा है। तो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यू कैन से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। पहले इधर से भी चालू करोगे तो भी प्रूफ हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब इसके बाद देखो कोसेक स्क्वायर ए, तो सिर्फ इतना देखो कि कोसेक ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए। तो स्टूडेंट के समझने के लिए, इजी करने के लिए मैंने वो फार्मूला भी यहाँ दे दिया है कि कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, तो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये भी हो जाएगा। क्लियर? तो कोसेक स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए एज इट इज। तो हमें क्या चाहिए था, साइन, इसलिए हमने कोसेक स्क्वायर ए को साइन के फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमें सबसे पहले साइन को कॉट ए में चेंज करना है। अब क्या करते हैं, टेकिंग साइन स्क्वायर ए ऑन द राइट हैंड साइड एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये इधर जाके डिवाइड होगा और ये इधर आकर के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। तो देयरफॉर 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। क्लियर? तो मिल गया ना। यहाँ पर देखो, अब इधर सिर्फ कॉट स्क्वायर ए का टर्म है, कॉट का टर्म है, और इधर साइन है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर लिख लोगे टेकिंग स्क्वायर रूट। तो देयरफॉर साइन ए इक्वल्स प्लस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ऐसा नहीं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए होता है, फिर से फॉर्मूला लिख दें और फिर से 1 अपॉन कोसेक ए हो जाएगा। नो, तब हमारा आंसर क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि हमें आंसर अपना क्या चाहिए, देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, ये हुआ साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो और अगर इसको फर्स्ट फॉर्म में दिखाना है, जैसे हमको बहुत ही जल्दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कभी कभी एग्जाम्स आ जाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो फिर से एक और ट्रिक बताता हूँ, वो अपना पेपर में साइड में नोट करके रखिए कि जो कहीं भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। साइन ए इक्वल्स क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक ए, मैंने यहाँ पर बताया ना, देखो ये है साइन, साइन को यहाँ कर दो और या तो हमारे फर्स्ट फार्मूले, आज की लिस्ट में फर्स्ट फार्मूले में जाइए, फर्स्ट फार्मूले का सेकंड स्टेप, तो वहां पर मिलेगा कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। तो कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, या साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए। क्लियर? तो यहाँ आ गया साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, और कोसेक ए यहाँ से क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, वो डायरेक्टली यहाँ रख दो और बाहर प्लस माइनस यूज कर देने का, बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट। हो गया अपना ऑप्शन, या ऑप्शन में सिर्फ प्लस दिया है तो प्लस वाला ऑप्शन कर दो, प्लस माइनस बोथ दिया है तो बोथ वाला ऑप्शन कर दो, एज यू लाइक। और सोल्यूशन है तो कोई भी चलेगा। तो हो गया ना यहाँ पर डायरेक्टली, मतलब विद इन 2 स्टेप्स, विद इन 1 स्टेप, ऐसा भी बोल सकते हो कि साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, बट कोसेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। डायरेक्टली पुट हियर वी गेट आंसर साइन ए इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और ये रहा फर्स्ट वन अपना, सिर्फ साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। चलो अब सेकंड टर्म को देखते हैं कि सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए कैसे दिखाना है। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है कि यहाँ से अपना सेकंड स्टेप चालू हो रहा है। सेकंड रेशियो, सिंस सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये हो गया आइडेंटिटीज। क्या लिखोगे, बाई आइडेंटिटीज। तो बाई आइडेंटिटीज लिखने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, tan को कॉट ए में ट्रांसफर कर देना है। तो देयरफॉर सेक स्क्वायर ए इक्वल्स 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। वाई?
बिकॉज tan ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, ये भी फार्मूला है आज का जो फॉर्मूला नंबर 3, उसमें जाके देख सकते हो कि tan ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। देयरफॉर sec स्क्वायर ए इक्वल्स 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। देयरफॉर sec स्क्वायर ए इक्वल्स, अब देखो 1 इंटू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 एज इट इज, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे इसको, या एलसीएम मेथड जो भी बोलो। तो ये भी सभी अभी कॉट स्क्वायर में, कॉट में हो गए पूरे टर्म, तो क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट। देयरफॉर sec ए इक्वल्स अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए, यहाँ भी प्लस माइनस लिख सकते हो, वैसे मैंने यहाँ पॉजिटिव आंसर दिया है, मोस्टली स्कूल लेवल में पॉजिटिव आंसर ले लेते हैं तो इसके लिए पॉजिटिव दे दिया। तो sec ए इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये भी हो गया sec ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब देखो इधर सब कॉट वाले टर्म है, क्योंकि प्लस 1 क्या है, वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट उसके साथ रहेगा, कोई बात नहीं। अभी थर्ड, tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए कैसे दिखाना है, तो इट इज वेरी सिंपल, सिंस tan ए इंटू कॉट ए इक्वल्स 1, इट इज अ फार्मूला, tan ए इंटू कॉट ए इक्वल्स 1, इट इज फार्मूला। देयरफॉर tan ए इक्वल्स 1 अपॉन कॉट ए, ये डायरेक्ट हो गया, tan ए इक्वल्स 1 अपॉन कॉट ए, या अगर ये डायरेक्टली लिख दोगे तो भी चलेगा, tan ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, इट इज फार्मूला। ओके, तो ये रहा अपना आइडेंटिटीज का आज का पहला क्वेश्चन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड है। तो इस तरह से अगर हम लोग अब सभी एक बार फार्मूले को वापस रिवाइज कर लेते हैं, अगर ये फार्मूले को एक बार वापस सब रिवाइज कर लोगे तो बहुत ही बेस्ट तरीके से जा सकते हो। अपने जितने भी ये फार्मूले लिस्ट में हैं, ये सभी फार्मूले एक बार अपना वापस रिवाइज करो, आइडेंटिटीज देखो, फिर से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करो। और देखो कोई भी क्वेश्चन जब भी सॉल्व कर रहे हो हमारे लेक्चर में, तो पूरा वीडियो अच्छे से सुनो, क्योंकि मैं बीच में कभी कभी बहुत ही ट्रिकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, उसी का शॉर्ट फॉर्म कैसे होता है वो भी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ हम क्वेश्चन को देखते जाएं और स्क्रीन शॉट ले करके सॉल्व कर लें, दैट वन इज ओनली सोल्यूशन, यू कांट अंडरस्टैंड बाय दैट मेथड। समझने के लिए पूरा वीडियो सुनना, देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देखो ये ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हो, और अगर फेस टू फेस रहते हो तो हम बहुत ही अच्छे से और भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन भी, अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। अगर यहाँ पर कोई डाउट आता है तो इमीडिएट तो नहीं पूछ सकते, लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, तो उसका नेक्स्ट वीडियो में सभी डाउट्स को मिला करके एक वीडियो बना करके फिर से एक्सप्लेन किया जा सकता है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। Second question, write all the other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A। तो देखो जहाँ पर A लिखा है उधर A, B, C कुछ भी हो सकते हैं, एनी एंगल, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी एंगल का नाम कुछ भी हो सकता है, दैट वन इज वेरिएबल, लेकिन जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो फिक्स रहेंगे। तो यहाँ पर ये बताना है कि राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो दिया कौन सा है, सेक ए, मतलब सेक ए को छोड़कर बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक ए के फॉर्म में दिखाना है इन टर्म्स ऑफ सेक ए, क्योंकि सेक ए का सेक ए के फॉर्म में क्या है, सेक ए इक्वल टू सेक ए, एक ही बात है और कुछ नहीं है। तो बाकी जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, ये सभी को सेक ए के फॉर्म में दिखाना है, जैसा कि अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कॉट ए के फॉर्म में दिखाए, राइट, साइन, सेक एंड टैन, इनको किस में करना था, कॉट ए में। और अभी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक ए के फॉर्म में दिखाना है अदर देन सेक ए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले साइन ए को सेक ए के फॉर्म में दिखाते हैं और देखते हैं कैसे होता है। तो स्टार्ट और सॉल्यूशन, फर्स्ट वन, यूजिंग आइडेंटिटी सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, दिस इज बाय आइडेंटिटी। Therefore, sin square a equals 1 minus cos square a, taking cos square a on the right hand side. But cos a has formula cos a equal to 1 upon sec a, क्योंकि हमें ये पूरा रिजल्ट, एंटायर रिजल्ट हमें sec a में कन्वर्ट कर देना है, तो इट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर a, बिकॉज cos a इक्वल टू 1 अपॉन sec a,
तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 सेक स्क्वायर ए, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, इसलिए 1 सेक स्क्वायर ए हियर। तो 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए इंटू 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1 एज इट इज अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो देयरफॉर साइन स्क्वायर ए इक्वल्स सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर। Now taking square root on both sides, therefore sin a equals अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, क्योंकि इसमें ओनली सेक ए के फॉर्म में दिखाने के लिए बोला गया, तो यहाँ भी प्लस माइनस यूज कर सकते हो कि साइन ए इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। अब देखो जैसा अभी सिर्फ अगर सोल्यूशन कॉपी करके लिखोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, तो ये एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी कि सर ने यहाँ पर प्लस माइनस भी बताया है, ये भी लिखा जा सकता है। ओके, तो साइन ए equals plus minus square root of sec square a minus 1 entire upon sec a. This is sin a in terms of sec a. ये पहला हो गया अपना फर्स्ट वन। चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड, since cos a into sec a equal to 1, this is formula. You can check this formula in my formula list on the first page. Therefore cos a equal to 1 upon sec a, ये हो गया cos a in terms of sec a. Okay, very simple. Third one, since 1 plus tan square a equals sec square a, since 1 plus tan square a equals sec square a, by identities taking 1 on the right hand side, therefore tan square a equal to sec square a minus 1. Now taking square root on both sides, we get tan a equals under root sec square a minus 1. हो गया tan a in terms of sec a, यहाँ भी प्लस माइनस लिख सकते हो कि tan a इक्वल्स प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1. नेक्स्ट वन, cot a into tan a equal to 1. This is formula and you can see this formula in the formula list. Therefore cot a equals 1 upon tan a. Cot a equals 1 upon tan a. Therefore cot a equals 1 upon under root sec square a minus 1. Because tan a, अभी just you got here tan a equal to under root sec square a minus 1. देखो यहाँ से tan a की वैल्यू हमें क्या मिली, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो tan a की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमें मिल गया डिनोमिनेटर। तो देयरफॉर cot a इक्वल्स 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि tan a का वैल्यू कहाँ से रख दिए, यहाँ से। यहाँ पर इक्वेशन का नाम भी दे सकते हो, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पर लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट वन, cosec a into sin a equals 1. It is formula. Therefore cosec a equals 1 upon sin a, और sin a का जो वैल्यू है वो हम रेफर कर सकते हैं अभी जो हमने फर्स्ट वन सोल्यूशन दिया यहाँ पर। देखो दिस इज sin a, तो sin a अंडर इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, तो उसी का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए। देयरफॉर कोसेक ए इक्वल्स, अब यहाँ क्या है 1 अपॉन साइन ए, तो उसका रेसिप्रोकल हो गया सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। वहाँ पर क्या था, ये ऊपर था और ये नीचे, ये न्यूमरेटर में था, ये डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पर ये न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यू ऑफ साइन ए इज कोसेक ए। तो कोसेक ए इक्वल टू सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये कहाँ से आया, अपने फर्स्ट एक्सप्लेनेशन से मिला। तो ऐसा कर सकते हो कि लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखना फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, और यहाँ पर लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? तो दिस इज द रीज़न मैं टाइम टू टाइम बताते जा रहा हूँ कि वीडियो फुल वॉच करो एंड लिसन केयरफुल्ली ऑल एक्सप्लेनेशंस एट लीस्ट ट्वाइस। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन, इवैल्यूएट। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट वन देखते हैं कि हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है। तो हमने क्वेश्चन, यही क्वेश्चन भी है और यहीं से सोल्यूशन भी स्टार्ट होता है। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो
तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वैल्यू इसकी फाइंड आउट तभी होगी व्हेन वी नो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वेरी वेल। एकदम अच्छे तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आती है, तो इसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट योर सोल्यूशन फ्रॉम द सेम स्टेप। सिंस साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, it is equal to sin square 63 degree plus sin square 27 can be written as cos square 90 minus 27 degrees. So cos square 90 minus 27, why? Because sin theta equal to cos 90 minus theta. ये हम आ जाते हैं एक्यूट एंगल फार्मूले में, sin theta equals cos 90 minus theta. अब देखो थीटा यहाँ क्या है 27, और यहाँ पर क्या है सेम 27। तो कॉस, अभी स्क्वायर को अगर हम छोड़ देते हैं दोनों जगह, सपोज कर लो स्क्वायर नहीं है, तो कॉस 90 माइनस 27 इक्वल टू साइन 27। क्लियर? देखो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल से साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस 27 इक्वल टू साइन 27। तो अगर दोनों जगह पर स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 27 इक्वल्स कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27। क्लियर? ओके। अब यहाँ देखो दोनों ही जगह पर मैंने साइन को, यहाँ पर साइन को ट्रांसफर कर लिया कॉस में, और यहाँ पर कॉस को ट्रांसफर कर लिया साइन में, क्योंकि ये फार्मूले एक दूसरे के वाइस वर्स हैं कि साइन थीटा इक्वल्स कॉस 90 माइनस थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल्स साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर नोट कर सकते हो अगला फार्मूला कॉस थीटा इक्वल्स साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ देखो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 एच इट। क्लियर? अब क्या करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं कि कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27 इज हाउ मच, कॉस स्क्वायर 63, क्योंकि 90 माइनस 27 करोगे क्या आएगा 63, और यहाँ 90 माइनस 17 कर दोगे तो क्या आएगा 73। तो इट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 अपॉन साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के टाइप में हो गया, मतलब ये आइडेंटिटी यूज हो गई फर्स्ट वन in numerator as well as denominator. So sin square 63 plus cos square 63 is 1. Also sin square 73 plus cos square 73 is 1. So this is 1 upon 1 becomes 1. तो ये रहा इसका आंसर। तो इस तरह से by using trigonometric identities you can solve this type of the question. तो यहाँ पर जो भी टर्म रहेगा ये ध्यान देना हमेशा कि 63 प्लस 27 ऑलवेज 90 डिग्री, 17 डिग्री प्लस 73 डिग्री इज ऑल्सो 90 डिग्री। ये दोनों का सम हमेशा क्या होता है 90। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मान लो यहाँ 20 डिग्री आएगा तो यहाँ 70 रहेगा, यहाँ पर 70 है तो यहाँ 20 रहेगा, तो वो दोनों का सम हमेशा क्या रहेगा 90, जो भी एंगल दिया जाएगा इसी तरह से दिया जाता है। तो जो किसी एक को चेंज करना है, न कि दोनों को। जैसे अगर हम दोनों को चेंज करेंगे तो फिर से हमारा साइन और साइन हो जाएगा, या कॉस और कॉस हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर नो आइडेंटिटी, यहाँ साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर नो आइडेंटिटी। तो इस तरह से हमें दोनों को नहीं चेंज करना है, चेंज एनी वन। सपोज कर लो कोई स्टूडेंट यहाँ पर लिखता है कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63, तो भी करेक्ट है। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63, फिर यहाँ क्या मिल जाता कॉस स्क्वायर 27। तो साइन स्क्वायर 27 को हम लोग एज इट इज रखते तो हमें मिल जाता कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 इज 1। ऐसे यहाँ पर लिख सकते हो। तो उस तरह से भी सॉल्व करके देखने का, ऐसा नहीं कि सर ने जो सोल्यूशन दिया हम उसको ही बाहर रखें। चेंज कर सकते हो, फर्स्ट वन को चेंज करो या सेकंड को चेंज करो, बट चेंज एनी वन नॉट बोथ, ये ध्यान देना। ये रहा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर क्वेश्चन। नाउ सी इट्स सेकंड, अभी थर्ड का सेकंड पार्ट देखो। इवेलुएट साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब देखो इन दोनों का भी सम कितना है 90, 25 प्लस 65 बिकम्स 90। इन दोनों का सम देखो 25 प्लस 65 बिकम्स व्हाट 90। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनका सम यहाँ पर 90 ही रहता है। तो यहाँ भी हम किसी एक को चेंज करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को और इन दोनों में से किसी एक को। तो चलो चेंज करते हैं। इट इज इक्वल टू साइन 25 डिग्री एज इट इज
cos 65 डिग्री कैन बी रिटेन एज sin 90 माइनस 65 बिकॉज cos थीटा यहाँ से देख सकते हो cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा एंड sin थीटा इक्वल्स cos 90 माइनस थीटा, ये दोनों यूज किए गए इसमें। और यही दोनों रेशियोज फार्मूले जो है अपने 3 के क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट में भी यूज किए गए। तो देखो cos 65 इक्वल्स हाउ मच sin 90 माइनस 65 cos थीटा बिकॉज cos थीटा इक्वल्स sin 90 माइनस थीटा, तो यहाँ थीटा क्या है 65 प्लस cos 25 एज इट इज, क्योंकि देखो हमने 25 डिग्री यहाँ भी नहीं चेंज किया है तो यहाँ भी नहीं चेंज करेंगे। ओके, यहाँ पर डिग्रीज लिख देना है sin 65 cos 90 माइनस 65 डिग्रीज। देखो sin थीटा इक्वल्स cos 90 माइनस थीटा, अब समझ गए होगे कि cos थीटा इज sin 90 माइनस थीटा, तो अगर थीटा 65 है तो बोथ द प्लेसेस लिखा जाएगा, और sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, तो जो भी वैल्यू थीटा की है वो बोथ द प्लेसेस पर एंटर करके यहाँ पर लिख सकते हो। क्लियर? चलो, इट इज इक्वल टू sin 25 एज इट इज इनटू, अब sin 90 माइनस 65 को रियल में माइनस कर दो sin 25 प्लस cos 25 एज इट इज cos 25 डिग्री cos 90 minus 65 subtract it into cos 25 degree. So sin 25 into sin 25 equals sin square 25 and cos 25 degree into cos 25 degree equals cos square 25। जैसे अभी के कहीं भी मल्टीप्लाई करते हो x इंटू एक्स बिकम्स व्हाट एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है थीटा है, इसका स्क्वायर नहीं होता, दिस इज थीटा एंगल, तो जैसे भी साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या आता है साइन स्क्वायर थीटा, न कि साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, इट इज रॉन्ग। साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, थीटा इज एंगल, सिर्फ रेशियो का स्क्वायर होता है, रेशियो का मल्टीप्लाई होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनके, न कि एंगल के। तो ये डाउट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट को अगर ये लगता है कि सर ने यहाँ पर इसका स्क्वायर नहीं लिखा तो दैट वन इज रॉन्ग। तो यहाँ पर क्या होगा साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री बिकम्स साइन स्क्वायर 25, मीन्स ये साइन 25 होल स्क्वायर, तो भी साइन स्क्वायर 25 ही लिखा जाएगा, प्लस cos 25 into cos 25 equals cos square 25. So sin square 25 plus cos square 25 is 1 because sin square theta plus cos square theta is 1. Identity. तो ये फर्स्ट में भी आंसर 1 आया और सेकंड में भी आंसर 1 है, दोनों में आंसर 1 है। और ये दोनों ही क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी कभी कभी पूछे जाते हैं और मल्टीपल चॉइस में भी क्वेश्चंस आते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 अभी जो अपना आने वाला है यहाँ पर, इसमें है मल्टीपल चॉइस, हमें करेक्ट ऑप्शन विथ जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन का मतलब हमें सोल्यूशन के साथ बताना है कि व्हाई दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो मैं पहले सोल्यूशन दे देता हूँ और फिर ऑप्शन दे देता हूँ। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट वन 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ये रहा अपना क्वेश्चन। तो स्टार्ट योर सोल्यूशन फ्रॉम द सेम स्टेप। इट इज इक्वल टू, देखो 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, व्हाट इज कॉमन इन दीज टू 9, 9 इज द कोफिशिएंट मल्टीपल, तो 9 को कर लेते हैं कॉमन। इट इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज 1। यू कैन सी टूडेज 7th फार्मूला, आज का जो आइडेंटिटी में 7th फार्मूला है उसमें देखोगे तो मिल जाएगा, वहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1 लिखा हुआ है, यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज 1, क्योंकि ये एंगल है कुछ भी दे सकते हैं। तो इट इज 9 इंटू 1 बिकम्स 9, देयरफॉर ऑप्शन बी 9 इज करेक्ट। अब इसमें देखो ए बी सी डी ऑप्शन में है वो लिखो, 1 2 3 4 है वो लिखो, या अदर्स में है तो वो लिखो, अगर रोमन नंबर्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी है वो लिखना है, बट 9, ये इस पर ध्यान दो कि योर आंसर इज 9 इज करेक्ट। ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, ए में 9 हो सकता है, बी में, सी में, डी में, कहीं भी हो सकता है, दे कैन चेंज। नाउ सी सेकंड, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी कहीं कहीं दिखाई देता है। तो इट इज इक्वल टू, इसको हम सबसे पहले देखो यहाँ पर 3 टर्म्स हैं और यहाँ भी 3 टर्म्स हैं, तो मोस्टली ऐसे अगर क्वेश्चंस आ गए तो उनको जहाँ तक हो सके साइन कॉस में चेंज करके सॉल्व करो। इट इज इक्वल टू 1 प्लस, देखो tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, दिस इज फार्मूला, यू कैन सी इन द टुडेज लिस्ट ऑल दिस फार्मूले।
So 1 plus tan theta equals what? Sin theta upon cos theta plus sec theta here. So sec theta equals 1 upon cos theta, bracket closed, into second bracket 1 as it is, plus cot theta is cos theta upon sin theta minus cosec theta equals 1 upon sin theta. So it is equal to, देखो cos theta यहाँ इसका डिनोमिनेटर है, तो इफ यू मल्टीप्लाई हियर cos थीटा एंड डिवाइड बाय cos थीटा, तो तीनों की डिनोमिनेटर क्या हो जाएगी? cos थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा. ओके, तो यू कैन से cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर वन टाइम लिखते हो या इसको वन टाइम मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करो या एलसीएम मेथड से सॉल्व करो, यू विल गेट सेम आंसर. So we have cos theta plus sin theta plus 1 upon cos theta. In the second bracket same here into sin theta upon sin theta कर दो, तो sin theta into 1 यहाँ क्या हो जाएगा? sin theta upon sin theta. तो sin theta plus cos theta minus 1 entire upon sin theta. So we get in the second bracket sin theta plus cos theta minus 1 entire upon sin theta. Now see, देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा, हियर ऑल्सो cos थीटा प्लस साइन थीटा, दोनों एक ही पार्ट हैं, इनको हम वन ब्रैकेट में कर लेते हैं कि cos थीटा प्लस साइन थीटा एंड हियर ऑल्सो cos थीटा प्लस साइन थीटा. तो cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस 1 इंटू माइनस 1, तो इट इज माइनस 1 बाहर और हियर 1 स्क्वायर. तो ये किस फॉर्म में हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में. देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्म में लिखा गया है. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एल्जेब्रिक फार्मूला अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर मीन्स cos थीटा इंटू साइन थीटा. दिस इज द मेन स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप. यहाँ पर स्टार मार्क लगा सकते हो कि ये स्टेप पर हमेशा फोकस करना है स्टूडेंट को, जिससे यहाँ पर कोई भी मिस्टेक ना हो. कि cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर. देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हियर ए प्लस बी, हियर ए माइनस बी, क्लियर, अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा. अब इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपेंड कर देते हैं और उसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. जैसा कि फॉर्मूले में बाहर रखते हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ऑर्डर में लिख लेते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा, हियर इट इज a प्लस बी द होल स्क्वायर फार्मूला, माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा एज इट इज. अब देखो इससे हमें क्या बेनिफिट मिला कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, दिस इज एन आइडेंटिटी. तो दिस इज 1, इट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1. ओके, ये 1 हो गया, दिस मिडल टर्म एज इट इज एंड माइनस 1 एज इट इज अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा. हियर 1 एंड माइनस 1 गेट कैंसिल, ये 0 हो गए, तो क्या बचता है? ओनली मिडल टर्म 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा. यही स्टेप कंटिन्यू यहाँ पर आ गया. Here sin theta get cancelled, cos theta get cancelled, so it is equal to 2 only. Therefore option C 2 is correct. जिसमें भी 2 लिखा हो ABCD में से देख लो कि ऑप्शन C that is 2 is correct. Now third one, sec A plus tan A into 1 minus sin A. तो इसको भी sin cos में ही ट्रांसफर कर लेते हैं, क्योंकि sec A is 1 upon cos A. Just a second. तो sec A प्लस tan A इंटू 1 माइनस साइन ए, क्योंकि ये C नहीं लिखा गया था, जस्ट रिटर्न sec A प्लस tan A इंटू 1 माइनस साइन A. तो sec A इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, tan A इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए एज इट इज. अब यहाँ पर देखो cos ए बोथ हैव सेम डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं 1 प्लस साइन ए एंटायर अपॉन कॉस ए. तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए. तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन कॉस ए, दैट इज 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए. तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला अप्लीकेबल, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो a स्क्वायर 1 स्क्वायर दैट इज 1 एंड साइन स्क्वायर ए हियर अपॉन कॉस ए.
तो बट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स कॉस स्क्वायर ए बाई आइडेंटिटी। आज की फर्स्ट आइडेंटिटी देख सकते हो, मतलब आइडेंटिटी नंबर जो फॉर्मूला के लिस्ट में 6th प्लेस पर है। कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, वन टाइम कॉस ए गेट कैंसल्ड, इट इज इक्वल टू कॉस ए, देयरफॉर ऑप्शन डी कॉस ए इज करेक्ट। और इसका फोर्थ वन देखो, फोर्थ वन 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। इट इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए, क्योंकि कॉट स्क्वायर ए इज 1 अपॉन tan स्क्वायर ए, बिकॉज कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन tan ए फार्मूला। अब यहाँ पर न्यूमरेटर एज इट इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए, हियर tan स्क्वायर ए इंटू 1, tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। The reciprocal of the denominator here 1 plus tan square a into tan square a upon 1 plus tan square a. 1 plus tan square a 1 plus tan square a get cancelled. The remaining term is tan square a. Therefore option D tan square a is correct. तो ये रहे अपने 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चंस यू शुड सी माय नेक्स्ट वीडियोज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन की एक सीरीज़ बनाई है, जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में अपलोड करता रहूँगा। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए, जिससे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और अपने वीडियोज़ को स्टार्ट करके वॉच करके लिसन करके समझ सकते हो। और कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क फ्रीक्वेंटली इन कमेंट सेक्शन। So dear student, you should share the channel link to your friends, or you can say Rajendra's teaching name of the channel to your friend. Thank you.